Hello students, this is part 3 of pair of linear equation in two variables. Okay, in this video we will study that graphical method of solution of a pair of linear equation. In the previous video we have learned that how to represent graphically and geometrically, algebraically and geometrically. In this video we will study graphical method of solution of pair of linear equation in two variables. Okay, generally solution of pair of linear equation in two variables, these two type. First is geometrically, and second algebraically. Okay, in the geometrically only one we have method, that is what? Graphically. Okay, graphically. And in algebraically we have three methods. First is substitution, second elimination, third is cross multiplication. Okay, these method we have, algebraically. And we have also two methods, comparing, and fifth is ratio method. Okay, these two methods, but these are not in our syllabus. ये हमारे syllabus में नहीं है, तो only हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये तीनों, क्या? substitution, elimination and cross multiplication. और उसके बाद से क्या? और ज्योमेट्रिकली जो है वो हमारे पास क्या है? ग्राफिकली. तो एक ही मेथड है ज्योमेट्रिकली. ओके, इसके बाद से अब फर्स्ट यही हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. ओके, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि फॉर टू लाइन्स वी हैव थ्री पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज व्हाट? दैट intersect at a point. Okay, two lines intersect at a point. Okay, and second possibility is not intersect, that is parallel. Okay, these are this possibility. Okay, that two lines not intersect, it means these lines are what? Parallel. Okay, and third possibility is what? The lines will be coincident और coincided. ओके, इट मीन्स एक के ऊपर एक. जैसे क्या कि एक लाइन है, ये हो गया, और फिर इसी पे एक और लाइन है. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट बोलेंगे. और ये हमारे क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग, और ये पैरेलल. तो ये हमारे पास टू लाइंस के लिए पॉसिबिलिटी है. ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशंस में देखेंगे कि कैसे कैसे कब पॉसिबिलिटी होता है बाय ग्राफिकली. ओके, okay, we have some examples for understanding this type of problem. Okay, then first question is 3 pens and 2 pencils together cost ₹19, whereas 2 pens and 3 pencils together cost ₹16. represent graphically. Okay, and then first of all हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको algebraically रिप्रेजेंट करने पड़ेगा. तो 3 पेन्स और 2 पेंसिल है, तो let the pens cost is what? X and pencil cost is Y rupees per pencil. Okay, then according to question, that is what? 3x plus 2y is equal to 19. And again, whereas 2 pens and 3 pencils together cost 16, then 2x plus 3y is equal to what? 16. After this, when we put x as 3, then we get what? Y is equal to 5, and when we put x is equal to 5, then we get y is equal to 2. And for this equation we have
what when we put x is equal to 5 then we get y is equal to 2, and when we put x is equal to 4 then we get y is equal to 4. Okay, after this we have 2 points 3 and 5, then we plot here 3 and 5, 3 5 here. Okay, x is equal to 3 and y is equal to 5, and after this 5 2, when we plot 5 2, x is equal to 5, y is equal to 2. Okay, then this is the graph of this equation. Okay, then we take name here. Okay, 3x plus 2y is equal to 19. आफ्टर दिस सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका प्लॉट करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे. ग्राफ खींचने के बाद इसका ग्राफ का नेम देंगे. ठीक है, तो ये हो गया. दूसरे एग्जांपल में देखते हैं. दूसरे एग्जांपल में क्या देखते हैं कि रोमिला परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9, and Sonali bought 4 pencils and 6 erasers for the same kind for ₹18. Represent graphically. Again we represent in let the cost of pencil is equal to what, ₹X, and the cost of eraser is equal to what, ₹Y. Okay, then we have according to question what, 2x plus 3y. Okay, 2 pencils and 3 eraser, then it is what, 2x plus 3y is equal to 19. When we put x is equal to 0 then we get y is equal to what, 3, and when we put x is equal to 3 then we get y is equal to 1. After this we plot this point on this graph. X is equal to 0, y is equal to 3, that is 3 here. Okay, and x is equal to 3, y is equal to 1. X is equal to 3, y is equal to 1. After this second equation, 4 pencil 6 eraser, then 4x plus 6y is equal to 18. Then we put the value of 3, then we get y is equal to what, 1. Okay, and we plot this, then we get here 3 1, and after this 4.50. Okay, and in the third example what the question says, 2 running tracks are represented by the equation this and this. Okay, रिप्रेजेंट ग्राफिकली. ओके, तो रिप्रेजेंट करना है तो अगेन उसी तरह, ये तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया है तो इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है. डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है वहां वैल्यू पुट किए, x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 2.5, एंड x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू व्हाट, 1. यू कैन सॉल्व हियर. ओके, एंड यू गेट व्हाट, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2, एंड when we plot and we draw the graph, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. ओके, तो इस टाइप का ग्राफ मिला, और एक काम क्या है, सब ग्राफ का हम लोग नेमिंग कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे. तो नेमिंग कर दिए. अब इस ग्राफ से ये जो तीनों हमारे पास ग्राफ है, उस तीनों ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, सेकेंड ग्राफ क्या है कि वो किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों जो लाइन है वो क्या है हमारे पास, एक के ऊपर एक है, कोइंसाइडेड है. ओके, एंड द थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड एग्जांपल, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. ओके, तो इस तरह हम लोग के पास जैसे कि 3 अभी जस्ट अभी पहले पढ़े क्या कि 3 लाइंस जो होता है वो क्या होता है, या तो क्या होगा, तो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर कोइंसिडेंट होगा, और या फिर क्या होगा, पैरेलल होगा. ओके, तो इसी तरह इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका भी तो हमारे पास क्या है कि या तो वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे. अब एक पॉइंट पे, अब देखिए, अब हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट क्या है, तो 5 2 है. ठीक है, अब इस 5 2 को हम इसमें पुट करके देखते हैं. तो 5 2 तो है ही यहाँ पे, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि कर भी सकते हैं, 3 into 5 plus 2 into what, 2, then we get 15 plus 4 is equal to 19. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. आफ्टर दिस यहाँ भी 2 into 5 plus 3 into 2, तो 10 हो गया, प्लस 6 क्या हो गया, 16 हो गया. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. और इसमें जो देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी हम पॉइंट ले ले,
ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, या फिर ये पॉइंट ले करके पुट करें, तो ये क्या करेगा, सारा सेटिस्फाई करेगा। जैसे क्या 0 3 हम इसमें पुट करते हैं, x का वैल्यू 0, तो x इंटू 0 y इज इक्वल टू 3, तो 0 प्लस 18 क्या आया, तो 18। तो ये भी पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें जो है वो क्या कर रहा है कि हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो क्या करे, इस दोनों को सेटिस्फाई करे। ओके, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास कोई भी हम लोग इक्वेशन ले ले, उसका जो भी हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसी तीनों में से कोई एक होगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। आफ्टर दिस, इसमें देखते हैं क्या, इस ग्राफ के लिए हमारे पास क्या हो रहा है कि मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत सारा पॉइंट हमको मिल रहा है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास क्या है कि नो सॉल्यूशन है। तो थर्ड जो एग्जांपल है उसमें क्या है हमारे पास, वो क्या है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें जो भी एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्या कि इसमें जो होता है जब ये इंटरसेक्ट कर देता है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद से इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है, इस ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब क्या कि किसी भी अगर सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन फाइंड हो जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या है, हमारे पास कंसिस्टेंट है। अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो पाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है। ओके, और ये जो हमारे पास ये जो कंसिस्टेंट है जिसमें मैनी सॉल्यूशन है, उस मैनी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि ये जो मतलब कि ये दोनों इक्वेशन है होता है, वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये वाला जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो है, जो दोनों इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट। ओके, तो इसका जो है आफ्टर दिस अभी हम लोग जस्ट क्या देखते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो आफ्टर दिस हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंट क्या है। ठीक है, कि कोई भी अगर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल है जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, जिसका कम से कम क्या मिल जाए, एक सॉल्यूशन मिल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जिसके पास हमारे पास वन सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट है, और जो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, तो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट क्या है कि जस्ट यही है, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट if it has what, if it has no solution। ओके, नो सॉल्यूशन। तो देखा जाए कि अगर किसी के पास जो भी है, हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्या है कि नो सॉल्यूशन है, जिसका वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जिसका वन सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। मैनी सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और जो हमारे पास नो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं, जो लाइन इंटरसेक्टिंग है वो भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। जो कोइंसिडेंट है वो भी क्या हो जाएगा,
कंसिस्टेंट हो जाएगा, और जो लाइन क्या है कि पैरेलल है। ठीक है, जो लाइन मतलब कि जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ अगर क्या है पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसका हमारे पास क्या है कि ये है मतलब कि इसका वैल्यू निकल जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। मतलब जिसका वैल्यू मिल जाए वो हमारा कंसिस्टेंट, और जिसका वैल्यू नहीं मिला वो हमारा इनकंसिस्टेंट। आफ्टर दिस ये तो हो गया ग्राफिकली हम लोग कैसे देख करके बताएंगे। और इसके बाद है हमारे पास क्या है कि विदाउट ग्राफिकली मतलब कुछ कंपैरिजन करके भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ओके, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने आते हैं थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम्पल पे। तो प्रीवियस एग्जाम्पल हमारे क्या था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो क्या था 3x + 2y = 19 एंड 2x + 3y = 16। ओके, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देखे थे वो क्या था द लाइन इंटरसेक्ट। ओके, इस टाइप का था। और इसमें क्या था कि सेकेंड एग्जाम्पल 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18 द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या है, थर्ड क्या है कि 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12 द लाइन्स आर पैरेलल। इसमें हमको क्या मिला था, लाइन्स जो था वो पैरेलल मिला था। अब देखते हैं कि अब इसको ग्राफिकली नहीं, इसके हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट जो है हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो है इसको हम लोग कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा क्या होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा वो किसका सॉल्यूशन होगा, किसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं जैसे क्या कि इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो a1/a2 क्या मिल जाएगा, तो 3 यही ना है, ये हो गया a1 और ये क्या हो गया b1 हो गया, और इसको इधर लाने के बाद -19 क्या हो जाएगा c1। उसी तरह ये क्या होगा a2, ये होगा b2, और ये इधर लाने के बाद -16 c2। ओके, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट है हमारे क्या 3 और a2 क्या है तो 2। ठीक है, 3/2 b1/b2 क्या है तो 2/3, c1/c2 क्या है -19/-16। ओके, तो कभी भी मतलब यहाँ ध्यान नहीं है कि कभी भी कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो उसको जनरल फॉर्म में ही ला करके करें। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जनरल फॉर्म क्या है, सेकेंड पार्ट में देखे थे कि जनरल फॉर्म क्या है, तो उस तरह पहले हम लोग कर लेंगे उसके बाद ही। जैसे इसमें क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 एंड 3/6 दैट इज 1/2 एंड -9/-18 which is what 1/2 and after this third example 2/3 is equal to 4/6 that is 2/3 and the -10/-12 which is 5/3। तो देखते हैं जी फर्स्ट एग्जांपल में जो हमारे पास क्या है कि a1 और a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है वो क्या है 3/2 एंड 2/3 which is not equal। ओके, और जब इस टाइप का हो जाए तो क्या हो जाएगा कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, और इसका सॉल्यूशन वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और हमारे पास क्या है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी क्या है कि कंसिस्टेंट होगा, और इसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। ओके, इसमें इज इक्वल टू c1/c2 हो या फिर नहीं हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस हमको यहाँ देखना है कि है कि नहीं। अगर नॉट इक्वल टू है तो इसको थर्ड वाले कंडीशन को हम लोग को नहीं देखना है, बट यही अगर हमारे पास इक्वल हो जाए, ठीक है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तब हम जो देखेंगे थर्ड रेशियो को भी देखेंगे कि क्या इक्वल है या नहीं इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो वो लाइन जो होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट होगा, और इसका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, और जो इसका सॉल्वेबिलिटी होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होगा डिपेंडेंट होगा। आफ्टर दिस लास्ट जो है हमारे पास क्या कि अगर ये इक्वल नहीं हो तब क्या हो जाएगा कि ये इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा
पैरेलल लाइन हो गया, जैसे कि एग्जांपल में भी देखे थे हम लोग ग्राफ खींच करके, और उसके बाद से इसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब जब सॉल्यूशन हमको मिला ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप दैट you will learn very easily this topic. Okay, thank you for attending the class.